قیام بھی پریشان سا تھا۔ اب سارا معاملہ جان کر وہ دونوں ساکت سے بیٹھے تھے۔ جب خادم ہاتھ میں بھاری تھال پکڑے آیا، میم یہ پہن لیں اور اچھے سے تیار ہو جائیں۔ خادم نے چیزوں کی بھری تھال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ ہیر نے حیرت سے خیام کو دیکھا تھا۔ اور خیام نے اسے خیام نے اپنی طرف ساکت نظروں سے دیکھتی ہیر کا کندھا ہلایا۔ میم پکچرز لینی ہے، ابھی بیوٹیشین آ جاتی ہے، تب تک ڈریس وغیرہ چینج کر لیں۔ خادم تھال اس کے سامنے پڑے جو چھوٹے سے ٹیبل پر رکھا کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ خیام نے گہری سانس لے کر اسے متوجہ کیا، جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے چپ چاپ تھی، لیکن نظریں اس رخ جوڑے پر تھی جو کافی ہیوی تھا۔ خیام یہ ٹھیک نہیں ہے، سردار ایسا نہیں چاہتے، یہ لوگ زبردستی ان کا نکاح میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہیر کو خود سے زیادہ فکر شہزادے کی تھی، بھلا وہ کہاں عام سی کمزور لڑکی اور کہاں وہ جو دکھنے میں ہی کسی ریاست کا شہزادہ لگتے ہیں۔ ان کا میرا تو کوئی جوڑ نہیں ہے۔ خیام سر جھکائے وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ پلیز آپ چینج کر لیں، کیا پتہ خدا نے انہیں آپ کے نصیب میں لکھا ہو، آپ کی ساری تکلیفوں کا مداوا وہ ہوں۔ اللہ کا فیصلہ جان کر تیار ہو جائے، اللہ ایسے ہی وسیلے بناتا ہے، آپ کا اور ان کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ اپنے بھائی کے منہ سے یہ سب باتیں اسے حیرانی میں ڈال گئی تھی۔ وہ کہیں اس کی نظروں میں چھپے ان کی آنکھ سے آگاہ تو نہیں ہو چکا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی جو باہر کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے ابھی تک ڈریس چینج کیوں نہیں کیا؟ باہر سب لوگ تیاری میں ہیں۔ ایک لڑکی اندر آتی کافی تیکھے لہجے میں سے بولی، میں پہن رہی ہوں۔ ایک دم کھڑی ہوتی وہ جلدی سے بولی، پلیز ذرا جلدی کریں، مجھے اور بھی برائڈس کو تیار کرنا ہے۔ وہ لڑکی بیوٹی باکس سے سامان نکال کر ٹیبل پر رکھتی مخلوط تاثرات سے بولی۔ سر ہلا کر وہ سامنے بنے واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھاری ریڈ کلر کی فراک میں تھی۔ دھیمے قدموں سے شرمیلے چہرے سے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ یہاں بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھاتی وہ لڑکی عام سے لہجے میں بولی۔ پہلے اس نے اس کی خوبصورت سی ڈیزائن والی چٹیاں بنائی، پھر ہلکا پھلکا میک اپ اس کے چہرے پر سجا کر وہ لڑکی ایسے جیسے جان چھڑا رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کر کے وہ اسے نکالی زیورات بھی پہنانے لگی جو لگتے سونے کے تھے لیکن تھے نکلی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی۔ حالانکہ اس بیوٹی پارلر والی نے جان چھڑائی تھی لیکن اس پر ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ وہ ہیر ہے جو عام سے کپڑوں میں کئی دن بال نہ بنانے والی ہیر ہے، یہ کافی مختلف ہیر تھی۔ تیار ہو تم، اپنا سامان واپس رکھتی ہوئے اسے کہہ کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ ہاتھ موڑتی سخت نروس انداز میں تھی۔ ہونٹ بھیجے وہ دھڑکتے دل سے پریشان بھی تھی۔ مولوی صاحب، خیام، تیمور اور شاہام صاحب کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ حد سے زیادہ نروس ہوتی، سر اتنا جھکا گئی کہ ایسا لگا سر گود کو چھو لے گا۔ ہیر بنت رضا ولد علی اصغر، آپ کا نکاح سردار غزان تیمور خانم کے ساتھ حق مہر 50,000 روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پڑھائے ہر لفظ پر اس کا دل کانپا تھا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر خیام کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ خیام نے سر ہلا کر قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 بار کہنے پر مولوی صاحب نے اس کے سائن نکاح نامے پہ لیے، پھر بنا اس لڑکی کو دیکھے مولوی سے کچھ بات چیت کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ نہ جانے کیوں ہیر کا دل کیا تھا تیمور خانم اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار دیتے، پتہ نہیں کیوں انہیں دیکھ کر اسے اپنے بابا یاد آ گئے تھے۔ خیام نے سر جھکا کر اس کا سر چوما، پھر ہاتھ پکڑ کر چومے۔ نکاح مبارک آپی، اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ سر جھکا گئی۔ اسے اپنے چھوٹے سے بھائی سے آج کافی شرم آ رہی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا تو آنکھوں پر ایسے جیسے بہت سارا بوجھ آ پڑا ہو جو وہ اٹھنے سے انکاری تھے۔ خیام مسکرا دیا۔ تھوڑے وقت بعد وہ آگے تھا اور اس کے پیچھے سب آ رہے تھے۔ وہ عام سے بلیک 2 پیس سوٹ میں تھا۔ ہیر کی تو نظریں پہلے جھکی ہوئی تھی، اب تو گردن بھی فرش سے جا لگی تھی۔ غزان بیٹھو اس لڑکی کے ساتھ، تیمور نے زبردستی سے ہیر کے ساتھ بٹھایا۔ وہ ہونٹ بھیجے بنا ہیر کو دیکھتا بیٹھ گیا، شکایتی نظریں باپ پر تھی جو اسے مسکرانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ دکھاوا مجھ سے نہیں ہوگا، تصویر بنانی ہے تو بنائیں ورنہ میں جا رہا ہوں۔ وہ بھی آخر انہی کا بیٹا تھا۔ تیمور نے فوٹوگرافر کو پکچرز وغیرہ بنانے کا اشارہ کیا۔ کیمرہ مین سر ہلاتا کیمرے کا فوکس ان دونوں پر کر گیا۔ ہیر کا دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا اس کی دھڑکن کی آواز سب سن چکے ہوں گے۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ میم پلیز سر اٹھائیں، کیمرہ مین نے اسے ایک دو بار کہا لیکن پتہ نہیں اس کا دھیان کہاں تھا، وہ تو اپنے دل کی رفتار میں الجھی ہوئی تھی۔ اے لڑکی سن نہیں رہی، وہ کیا کہہ رہا ہے، سر اٹھا اپنا اور کیمرے کی طرف دیکھ۔ اس بار ریاض صاحب پھنکا رہے تھے اس معصوم لڑکی پر، وہ دبک سی گئی تھی ان کے تیز اور حد تک آمیز لہجے پر۔ ایک دم سے وہ سر اٹھا گئی تھی۔ خیام نے غصے سے ریاض خانم کو دیکھا جن کا دل کرتا ہے اس لڑکی کو کچا چبا جائے۔
पता नहीं वो कहाँ से टपक पड़ी थी मनूस मारी। रियाज साहब बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए थे, वरना 3-4 ही पिक्चर्स बननी थी। जब सरदार खदान वहाँ से उठकर तेज़ी से निकल गया था, बिना इस मासूम लड़की को देखे जो शायद इसी के नाम से तैयार हुई थी, लेकिन अपने नाम लिखवाने वाले के सिवा सब ने इस लड़की को देखा था। आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर चले गए। वो बहन भाई भी वहाँ बैठे रह गए। क्या करना है इस लड़की का? रियाज साहब सर्द लहजे में तैमूर खानम से मुखातिब थे। रियाज, कल का दिन सब्र कर ले, इसके बाद ये लड़की तुझे नज़र नहीं आएगी यार। तैमूर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देने वाले अंदाज में रिलैक्स किया। क्या सब्र करूँ, जब से मेरी बेटी ने सुना है वो चुप है, ना कुछ बोली है, ना किसी को देखती है। तुम कहते हो सब्र कर जा। याद रखना तैमूर खानम, अगर मेरी बेटी को इसकी असली जगह ना मिली तो अपनी बहन के लिए जगह बना लेना, तलाक लेकर तुम्हारी दहलीज पर आएगी। पहाड़ में गई रिश्तेदारी, मुझे मेरी बेटी से भरकर कोई चीज़ अजीज़ नहीं, तुम्हारी दोस्ती और रिश्तेदारी भी नहीं। कल मुझे ये लड़की नज़र ना आए, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। रियाज गुस्से का भरपूर मुजाहरा करके वहाँ रुके नहीं थे, जबकि वो तीनों भाई परेशानी से वहाँ खड़े रह गए। इस लड़की की रहमदिली ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा भाई। सहर खानम भी गुस्से से बोली, जो कि मरीना के वालिद थे और काफ़ी गुस्से वाले भी थे। सब ठीक हो जाएगा, बस 1-2 दिन तक क्लियर हो जाएगा। समीना को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता वो। तैमूर खानम ने गहरी सांस लेकर इन्हें प्यार आराम किया। सारी रात वो सो नहीं सके थे। हीर ने सफ़ेद कलर का कॉटन का सूट पहना हुआ था, जिस पर काली लेस लगी हुई थी। ऊपर काली शॉली, वो किचन में खड़ी ख़याम के लिए नाश्ता बना रही थी। आँखें हद से ज़्यादा दर्द कर रही थी, लेकिन परवाह किसे थी। ख़याम, आओ नाश्ता कर लो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। ख़याम को सोफ़े पर नींदराज देखकर वो किचन की खिड़की से उसे पुकार गई थी। सारी लाता वो उठकर किचन की तरफ चला आया। आप ही दिल नहीं कर रहा। इसे अपने सामने खाना रखता देखकर वो परेशानी से बोला, ख़याम प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। रोटी का निवाला इसकी तरफ बढ़ाती हूँ फ़िक्रमंदी से बोली, तो फिर आपको भी मेरे साथ शेयर करना होगा। वो भी निवाला तोड़ के इसके होठों के करीब करता हुआ बोला। हल्की मुस्कान इसे देखती हुई मुँह खोल गई। ख़याम और हीर ने मिलकर वो पराठा खाया था। ख़याम के चले जाने के बाद वो कमरे में आती लेट गए। दिल बहुत परेशान था, जैसे कुछ होने वाला हो। किसी काम को हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा था। इसे लेटे अभी आधा घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पे बेल बजी। वो चौंक कर उठती, दुपट्टा ठीक से वजूद के घेर लेती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलती हुई टिटकी थी। सामने ही राना पुलिस और यूनिफॉर्म में खड़ा इसे सर्द नज़रों से देख रहा था। आप, वो डर कर पीछे होती हुई बोली, क्यों मुझे इतनी जल्दी भूल गई? वो तनसा बोलता इसके करीब आया। वो डर कर पीछे हुई थी। शादी कर ली सरदार से, बहुत मज़े में होगी तुम तो। राना के तंज़िया लहजे पर वो चौंक कर इसे देखने लगी। आंखों में नमी झिलमिलाने लगी थी तो वजूद लरसने लगा था। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे गिरफ़्तार मत करें, मैं नशा नहीं बेचती। वो सहमत सा अंदाज लिए खौफ ज़दा लहजे में बोलती। राना को गुस्सा चढ़ा गई थी। नहीं करूँगा गिरफ़्तार, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। वो गंभीर लहजे में बोलता आखिर इसकी ठोड़ी और 2 उंगलियों से छूता मुस्कुराया था। हीर ने ठिठक कर इसे देखा, फिर इसके हाथ को पीछे हटे, शर्म नहीं आती आपको? एक झटके से इसका हाथ पीछे करती हुई सदमे से चिल्लाई थी, बात सुनो मेरी, ये निकाह आर्जी है, इसलिए अपनी औकात में रहो। सरदार के ख्वाब अगर इन आँखों में सजाने की कोशिश की तो आंखें नोच लूँगा। समझी, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, तुमने मेरा सिर्फ एक रूप देखा है और मैं चाहता भी यही हूँ, तुम मेरा भयानक रूप ही ना ही देखो। इस सरदार को अपने करीब आने दिया तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूँगा, उधेड़ दूँगा, समझी? इसका मुँह अपने सख्त हाथों में दबोचता वो फनकारता वहाँ रुका नहीं था। इसके जाने के बाद वहीं दहलीज पे बैठी रोती। अभी तो बहुत कुछ देखना था इस छोटी सी लड़की ने, अभी तो शुरुआत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिक्चर्स, निकाहनामा और कुछ ज़रूरी सबूत लाइव पूरी रियासत को दिखाए गए। निकाहनामा जांचा भी गया, कहीं नकली तो नहीं, जबकि वो हाथ की मुट्ठी बनाए होठों पर रखे बैठा रहा। इसका सर दर्द करने लगा था। ऐसी चीज़ों से झूठ साजिशें इसे नहीं आती थी, ना ही इसे पसंद थी, लेकिन वो खामोश था सिर्फ अपने बाप की वजह से। सरदार, वन क्वेश्चन, क्या इस लड़की से आपको मोहब्बत है? एक मनचला रिपोर्टर इश्तियाक से बोला। अब सबकी नज़रें सरदार पर थी, जिसे वो सब जानना चाहते हों। वो बिना इन्हें देखता बाप को देखकर मुस्कुराया, जबकि तैमूर साहब वो कुला गए थे। नहीं, मुझे इस लड़की से मोहब्बत नहीं है, कहते हुए वो उठा था। रिपोर्टर्स ने हैरत से इसे देखा, जबकि तैमूर समेत सब अपना सर पीट कर रह गए। मुझे इससे इश्क है, ये मोहब्बत तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है इसके सामने। मुस्कुराते लहजे में कहता वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। घर वाले रिपोर्टर सब हैरत से सर घुमाकर शान से चलते सरदार को देखते रह गए, जिसके होठों पर मुस्कुराहट थी। बाप का होंठ भरा चेहरा देखकर आखिर इसने भी तो बदला लेना था। रियाज खानम ने दांत पर दांत जमाते हुए तैमूर खानम को देखा। तैमूर खानम भौंकलाए गए थे।
ٹیلی ویژن پر ان کا نکاح نامہ تصاویر وغیرہ دکھائی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ لڑکی کہتی تھی وہ عام ہے، وہ عام کیسے ہو سکتی تھی جس کے نصیب میں سردار خزان تھا؟ رب نے کیسا وسیلہ بنایا تھا انہیں ملانے کا؟ ساری دنیا آگاہ ہو چکی تھی ان کے نکاح سے۔ گہرے گہرے سانس لیتی شائنہ گھر کے سارے ٹی وی توڑ چکی تھی، ہر چیز وہ گھر کے توڑ چکی تھی، چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ سمینہ بیگم تو بیٹی کو دیکھ دیکھ کر ہول رہی تھی لیکن پاس نہیں جا سکی۔ غصے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، جو چیز ہاتھ میں آتی وہی اگلے بندر پر پھینک دیتی۔ اسے ہینڈل اس کا باپ ہی کر سکتا تھا۔ سردار غزان ضروری کام سے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ قیام بھی ابھی تک نہیں تھا۔ وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی تھی، بارش بھی خوب برس رہی تھی، اس کا دل پریشان ہو چکا تھا۔ مسلسل برستی بارش اور تیز ہوا سے سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے پہ وہ ڈری سہمی سی بیٹھی تھی، تبھی کلک دروازہ کھلا تھا۔ اسے لگا شاید قیام ہے، وہ اطمینان کا سانس لیتی جھٹ سے صوفے سے کھڑی ہوئی، لیکن سامنے سے آتے غیر آدمیوں کو اس نے حیرت و ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تم ہی ہو؟ ایک آدمی کافی زہریلے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ جماتی ہوئی ڈرتی ہوئی سر جھکا گئی، وجود کپ کپانے لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھے؟ تو وہ تم ہی ہو؟ وہ آدمی اس کی چوٹی پکڑتا ہوا بے تاثر لہجے میں بولا۔ ہیڈ نے تکلیف سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چھوڑے میرے بال چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی منرائی تھی، آنکھوں میں درد سے نمی جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چھوڑ دیتے ہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اسے ہونس بالوں سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے وہ بولا۔ وہ 3 آدمی تھے، تینوں ہی شکل سے بدمعاش لگتے تھے۔ اس آدمی نے بالوں سے پکڑے اسے باہر کی طرف زور سے دھکا دیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی نیچے فرش پر گری تھی۔ تیری یہ مجال تو شائنہ کی جگہ لے، تیرے ٹکڑے نہ کر دوں میں خبیث لڑکی، وہ پہلے والا ہی بھرپور تک غصے سے چلایا تھا۔ بالوں پہ ہاتھ رکھے وہ تکلیف و حتک آمیز انداز پر رونے لگی تھی۔ چل نکل یہاں سے، وہی آدمی دوبارہ اس کی چوٹی سے پکڑتا ہوا سے کھینچتا ہوا بولا تھا۔ انداز بے حسی لیا ہوا تھا، وہ مسلسل روتی ہوئی بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اس بار بھی پوری شدت سے اسے باہر کی طرف منہ کے بل دکھا دیا تھا۔ منہ کے بل گرتی ہوئی چیختی ہوئی کچی مٹی پہ گری تھی۔ یہ جائے گی نہیں، پھر آ جائے گی، دوسرا آدمی سے روتا دیکھا بے تاثر لہجے میں بولا۔ ندی میں پھینک دے اسے کون سا تیرنا آتا ہے؟ ان کی باتوں نے ہیر کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ہونٹوں سے مٹی صاف کرتی ہوا وہ مشکل کھڑی ہوتی رونے لگی تھی۔ دائیں پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ چکا تھا، وہ کیسے دوڑتی؟ دوسرے لمحے وہ پھر اسے پکڑ چکے تھے۔ کہاں بھاگنے کی تیاری ہے کمذات لڑکی؟ اسے پھر سے بالوں سے پکڑتا ہوا بولا تھا۔ مجھے جانے دے پلیز، مجھے مت مارے، بہت مشکل سے ان کے آگے ہاتھ جوڑے وہ بولی تھی۔ چل آسان موت دیتے ہیں، اس ندی میں کود جا ورنہ گولیوں سے تیرا پورا وجود چھلنی کر دیں گے۔ کیا یہ منظور ہے یا پھر ندی میں کودنا ہے؟ اس کے بال چھوڑتا ہوا تمسخر سے بولا تھا۔ دوسرے دونوں کہکمہ لگا گئے اس بے بس لڑکی کی بے بسی پر۔ مجھے جانے دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر آئی تھی۔ چل بھاگ جا، لیکن اس گھر میں ہمیں واپس دیکھی تو تیرا سارا وجود کو گولیوں سے چھلنی کر کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے، سمجھی؟ پسٹل انگلی پر گھماتا ہوا بے حس انداز میں بولا۔ وہ ٹٹکی انہیں دیکھتی ہوئی سر ہلاتی ہوئی بہت مشکل سے بھاگنے لگی تھی، جبکہ وہ تینوں گھر کے اندر چلے گئے، کہیں وہ پھر سے نہ آ جائے۔ دوپٹہ وہیں اندر ان کے کھینچنے سے گر چکا تھا۔ روتے ہوئے بھاگتی رکی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی کی لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے وہ کپکپانے لگی تھی، وجود لرزانے لگا تھا سردی سے۔ آر یو اوکے؟ کسی نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہیر نے جھٹ سے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے، وہ اس آواز کو لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی، پھر بارش کے شور میں کیسے نہ سن پاتی اس کا نرم لہجہ۔ وہ بھی حیرت سے 2-3 قدم آگے کو سرکا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ہیر رضا وہ پریشانی سے بولا تھا۔ سردار ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی وہ شدت سے روتی تھی۔ ہیر اگلے ہی لمحے اس کی باہوں میں تھی، وہ حواس کھونے لگی تھی۔ اس نے اس کے بھیگے کپڑوں میں نمایاں ہوتے وجود پر اپنی شرٹ پہنا کر گارڈ کو گاڑی کا ڈور کھولنے کو کہا۔ آنکھوں میں سرد پن سا تھا۔ اس بے سہارا لڑکی کو باہوں میں اٹھائے وہ اپنی ذاتی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھائے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بڑی احتیاط سے ڈالتا ہوا خود بھی ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ سردار محل چلیں یا آپ کے ذاتی گھر؟ خادم نے ادب سے پوچھا۔ محل نہیں، میرے بنگلے چلو، ہیر کے چہرے کو دیکھتا ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا۔ گاڑی نے جیسے ہی مخالف موڑ کا کاٹا، ہیر کا سر ڈھلک کر اس کے کندھے پر آ گرا تھا۔ اسے چونک کر اس کے سر کو دیکھا، سیدھی نکلی مانگ بھی ابھی بھی پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے، دراز پلکیں ایک دوسرے سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ اس طرح گھر سے کیوں نکلی تھی اور یہ حالت کیسی ہوئی؟ اس کا سر ٹھیک کرتا وہ پرجوش انداز میں بڑبڑایا تھا۔
गाड़ी के रुकते ही बिना हीर को उठाए वो अंदर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा था। चेहरे पर सख्ती सी थी। वो दोनों ताश खेलते कहकवे पर कहकवे लगा रहे थे। इन्हें अपने लॉन्च में देखकर इसका खून तेजी से खौलने लगा था। मुठियां भेजे वो तेज कदमों से इनकी तरफ बढ़ा था। बिना इन्हें समझने का मौका दिए वो इन पर चढ़ दौड़ा था। यू बास्टर, इस लड़की के साथ किया है तुम दोनों ने? इनका गिरबान पकड़ते हुए फनकारा था, जबकि इनकी तो सीटी गुम हो चुकी थी। सदा खजान कोच में अपने सामने देखकर अब मौत इन्हें आसपास चलती हुई महसूस हुई थी। वो रियाज खानम के ख़ास आदमी थे। रियाज के कहने पर तो वो अपनी जान भी दे सकते थे। हमें माफ़ कर दें सरदार, हमने बस इसे यहाँ से भगाया, इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। हमें जाने दे सरदार। लावर हाथ जोड़ता हुआ बोल रहा था। इसका पैर ज़ख्मी है, इसके बाल टूटकर इसके कंधों पे पड़े, और तुम कहते हो तुमने इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। इनके सर एक दूसरे से मारता हुआ तैश से चिल्लाया। खादिम ने चौंक कर अपने सरदार को देखा था। तुम दोनों होते कौन हो मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में घुसने वाले? हाँ, तुम दोनों की जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? इन्हें नीचे पटकता हुआ फिर से चिल्लाया था। माफ़ कर दे, हमसे भूल हो गई है सरदार, इसके कदमों में बैठते हुए रोते हुए बोले थे। गलती नहीं, गुनाह कहो। इन्हें ठोकर मारकर पीछे की तरफ गिरा था। वो इस बार सर्द लहजे में बोला था। खादिम, इनकी अच्छी सी धुलाई करके इन्हें रियाज महल भेजना, इन्हें भी तो पता चले अपने कारनामे। सर्द लहजे में कहता वो बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि खादिम और गार्ड्स इन दोनों की तरफ बढ़े थे। गाड़ी का डोर गार्ड ने गाड़ी का डोर गार्ड ने इसे देखकर सराहियत से खोला। चुपकर आराम से इस कमज़ोर वजूद को बाहों में लिया था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत हल्की चीज़ उठाए हुए है। लग ही नहीं रहा था ये जीती जागती लड़की का वजूद है। बाहें नीचे को झूल रही थी, जबकि सर इसके कंधे पर पड़ा हुआ था। इसे नीचे वाली पहले रो में बने रूम में ले आया था। इसके वजूद को बेड पर बड़े आराम से डालता हुआ वो डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। जैसे इसने फ़ोन किया, इस वक्त इसकी मॉम की कॉल आने लगी थी। इसे मुस्कुराकर माँ की कॉल अटेंड की। कैसी हैं आप? वो खिड़की में आता बड़े नरम लहजे में पूछ रहा था। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है गजान? रायना के लहजे में मायूसी थी। वो कब से इतने दिन देखे बगैर निकाल सकती थी। वो मुस्कुरा दिया। कल की फ़्लाइट से आपके पास होऊंगा। मैं अब थोड़ा सा होऊंगा, अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दें। वो हीर की तरफ रुख मोड़ता हुआ मोहब्बत से बोला। सच? रायना के लहजे में बेयकीनी सी थी। सच मॉम, मैं आपको सरप्राइज़ करना चाह रहा था, लेकिन अब आपको परेशान देखकर बता दिया है। अब तो खुश हो जाएं, आपका बेटा रात का डिनर आपके साथ करने वाला है। धीमे कदमों से आंखें खोलती लड़की के पास आते हुए वो बोला था। मैं इंतज़ार करूँगी ग़ज़ान, माँ को ज़्यादा इंतज़ार न करवाना। उन्होंने कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन पॉकेट में डालता वो दरवाजे की जानिब देखने लगा, जहाँ से खादिम के साथ एक यंग सी डॉक्टर दाखिल हो रही थी। खादिम डॉक्टर को कमरे में छोड़कर खुद बाहर चला गया। हीर की नब्ज़ चेक करके वो स्टेथोस्कोप से इसे चेक करने लगी थी। क्या ये आपकी वाइफ़ है? डॉक्टर ने सरदार से हैरत से पूछा। वाइफ़ कहने पर वो चौंक सा गया था। हीर भी आंखें खोलकर डॉक्टर को देखने लगी, लेकिन आंखों में खालीपन सा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका वजूद तो यही हो, लेकिन ध्यान कहीं और ही था। सरदार ने इसे देखा जो इसे नहीं देख रही थी। नहीं, इसने कुछ सोचकर बताया था। हीर की आंखों की पतलियां साकित हुई थी। ओह, डॉक्टर ने सर हिलाया। देखें, ये काफ़ी कमज़ोर है, इन्हें अच्छी खुराक और देखभाल की ज़रूरत है। प्लीज़ इनका ख्याल रखें, इन्हें परेशानी वगैरह से दूर रखें, वरना। डॉक्टर संजीदगी से कहती हुई चुप हुई थी, क्योंकि सरदार ग़ज़ा ने चौंक कर इन्हें देखा। वरना क्या? फ़ोन कान से लगाता वो संजीदगी से बोला। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, ज़्यादा दबाव से इनकी दिमाग की नसें फट भी सकती हैं। डॉक्टर के इंकशाफ पर इसने हैरानी से डॉक्टर को देखकर इसे देखा, जो आंखें मूंदे पड़ी हुई थी। इसे देखता हुआ सर हिला गया। डॉक्टर मेडिसिन लेकर बाहर खड़े खादिम को पकड़ा गई थी। बंद आंखों से आंसू एक कतार में बहते इसके गालों पर पड़ने लगे थे। वो चौंका सा गया था। बड़े से हॉल में खड़ा वो बारिश के रुकने के इंतज़ार में था कि बारिश बहुत तेज़ थी, इतनी के बाहर मुंह तक नहीं निकाला जा रहा था। वो ठिठका था। पिल्लर के पीछे से धुआं सा निकल रहा था। वो तशवीश से पिल्लर की जानिब बढ़ा था। इसे स्मोकिंग करता देखकर वहीं का वहीं जम गया था। वो चौंक कर पलटी थी, लेकिन इसे देखकर वो रिलैक्स हुई। पियोगे? धुआं इसके मुंह पर छोड़ती वो इससे पूछ रही थी। इसे इस लड़की से नफरत हुई थी जो कष्ट पर कष्ट लगा रही थी। क्या है, इस तरह क्यों देख रहे हो? वो गुस्से से पूछ रही थी। आपको शर्म नहीं आती लड़की होकर स्मोकिंग करते हुए? इसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था। तुमसे मतलब नौकर हो तो नौकर हो, ज़्यादा मेरा अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर किसी को बताया तो बहुत बुरा पेश आऊँगी मैं। तुम अभी मुझे जानते नहीं। सिगरेट को पैर से मसलती वो पहली बार संजीदगी से बोली थी। आप एक लड़की हैं और जानती हूँ मैं लड़की हूँ, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं।
मुंह और हाथों पर स्प्रे करती हुई छटक कर बोली। इसे देखता वो होंठ भींच गया। वो लड़की चोरी चोरी न जाने क्या क्या काम करती थी। वो तशवीश में पड़ गया था। आखिर वो सरदार की कज़न थी, इस नाते इसका परेशान होना बनता था। वो आगे बढ़ा था जब वो इसका हाथ थाम गई। वो हैरत से अपनी कलाई को देखने लगा, जो इसकी कलाई हाथ में पकड़े इस वार्निंग देती नज़रों से देख रही थी। बात सुनो मेरे ध्यान से, क्या तुम जानते हो मेरे पास मेरे खुद की पिस्टल भी है। इसमें 6 की 6 गोलियां पड़ी हुई हैं। बताने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे मुंह से मेरे लिए सरदार या किसी और के सामने कुछ भी निकला तो पहली गोली तुम्हारे नाम। इस धमकी मत समझना, मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। गुस्से से कहती बाल झटकती वहाँ से निकल गई, जबकि वो परेशानी से वह खड़ा रह गया। क्या इस लड़की की हरकत इसे सरदार को बताना चाहिए था? हाँ, इसे बताना चाहिए था। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इसका फ़र्ज़ बनता है सरदार को बताना। कुछ सोचता वो बारिश में ही निकल चुका था। घर के लिए इसकी आप ही घर में अकेली होंगी। तुम ठीक हो जाओगी, प्लीज़ डोंट टू क्राई। इससे नरमी से कहता हुआ न जाने क्यों इस लड़की के सर पे हाथ रख गया था। इसका हाथ अपने सर पर महसूस करती वो साकत हुई थी। आंखें खोलकर खुद पे झुके सरदार को बेयकीनी से देख रही थी। क्या कहीं दर्द है? वो बहुत ही नरम लहजे में पूछ रहा था। इसने फ़कत सर नफ़ी में हिला दिया। अपना ख्याल रखो लड़की, जो लोग अपनी ज़ात के लिए स्टैंड नहीं लेते, लोग इन्हें पाँव के नीचे कुचल देते हैं। तुम खाओ पियो और जान बनाओ, तभी तुम ज़माने का सामना करने के काबिल बनोगी, वरना तुम्हारी ज़ात मिट्टी में कब कैसे मिल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसके सर पे हाथ रखे, मुँह झुके हुए इसे समझा रहा था। वो आंखें खोले से देखती रही। अल्लाह हाफिज़। इसका सर उंगलियों से थपकता हुआ कहकर रुका नहीं था, जबकि वो उसके नरम लहजे के शहर में गुम होने लगी थी। आंखों में ठहरे ठहरे आंसू अपनी जगह रुक से गए थे, जैसे सरदार की बात के अदब में रुक गए हों। वो लड़की भी अजीब थी, जानती थी इसका इनसे कोई जोड़ नहीं, लेकिन फिर भी दिल इन्हें देखकर ठहर सा जाता था। बल्कि इसे ज़माने इनके सामने रुकने से लगते थे। वो पागल थी, आसमान से दिल लगाने चली थी। क्या जानती नहीं थी ये नामुमकिन सा है। इस राह में से क्या क्या सहना पड़ेगा, अभी जानती जो नहीं थी। ख़याम के पूछने पर इसने इसे बता दिया वो बारिश की वजह से सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। वो सारी रात बहन के सराहने बैठा रहा। किसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ चुका था, शायद सर्दी लग गई थी इसे। क्या जाना ज़रूरी है? इसे सामान पैक करता देखकर वो परेशानी से बोले थे। जस्ट डैड। काली शर्ट पर ब्राउन कोट पहनता हुआ संजीदगी से बोला। मत जाओ यार, दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बाप का। वो परेशानी से बोले थे। कम ऑन डैड, आपका दिल बहलाने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन मेरी मॉम का दिल सिर्फ मुझसे ही बहलता है ना किसी और बहलता है ना कि किसी और वजूद से। वो वॉच पहनता पे हल्का सा तंज कर गया था। तैमूर खानम ने इसे सुलगती नज़रों से देखा। तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में तुमसे कुछ ज़्यादा ही गलत बयानी की है। वो खड़े होते हुए बोले। मेरी मॉम झूठ नहीं बोलती डैड। हल्की मुस्कान से कहता है वो बाप को तपा गया था। तो क्या तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है? वो दांत पीस कर बोले। ऐसा मैंने कब कहा? वो आई ब्रूज वो आई ब्रूज का आकर शरारत से बोला था, जिस पर वो इसे गुस्से से घूरते कमरे से ही चले गए। वो जवाबन संजीदगी से सर झटक कर रह गया। आप कितने दिन वहाँ रहेंगे? मेरीना इसे काफ़ी कॉफ़ी पेश करती एहतराम से पूछ रही थी। जल्द आ जाऊँगा, तुमने किसी को तंग नहीं करना और ना ही मुझे कोई तुम्हारी शिकायत मिले। कॉफ़ी का सिप लेता वो संजीदगी से समझा रहा था, जबकि वो सर झुकाए किसी शरीफ बच्चे की तरह बस सर हिलाए जा रही थी। गुड गर्ल। इसकी फर्माबरदारी पर वो मुस्कुराया था। वो भी जवाबन मुस्कुराई। मुझे आपको ये देना है। वो एक पी सी इसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली थी। कब इसे थामता पर्चीज़ के हाथ से लेकर एक नज़र दौड़ाने लगा। फिर इसकी फर्माबरदारी की समझ आ चुकी थी। इसने काफ़ी लंबी लिस्ट इसे थमाई थी, जिनमें सिर्फ मेकअप की कॉस्मेटिक का नाम दर्ज था। पर्ची लेकर वो सर हिला गया था। सबसे मिलता खादिम को कुछ ख़ास हिदायत देता वो मिस्र के लिए रवाना हो चुका था। सरदार जा चुका है, अब इस लड़की का क्या करना है? रियाज ने ख़शाम और तैमूर से खासे गुस्से में पूछा था। इसके आदमी की जो हालत सरदार ने की थी वो उसे भूल नहीं रही थी। अब इसकी सज़ा उस लड़की को देना चाहता था। आखिर इस लड़की की वजह से वो इसकी बेटी से भाग रहा था। करना क्या है, मार देते ना, न रहेगा सांप न बजे की बीन। ज़हीर आलम ने इनके पास आते नफ़रत से कहा। रियाज साहब को इनकी बात बहुत भाई थी। सही बिल्कुल ठीक कह रहा, अब इस लड़के का काम तमाम कर देना चाहिए। रियाज ने भी संजीदगी से कहा, जबकि तैमूर खानम ने होंठ पीछे। मेरे ख्याल में इसे कुछ पैसे देकर यहाँ से चलता कर देना चाहिए।
तैमूर ने कुछ सोचते हुए कहा। तैमूर खानम, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा बेटा इसे ढूंढता फिरे? ऐसा काम तमाम करो और मेरी बेटी को इस घर की बड़ी बहू बनाने की तैयारी करो। आखिर कब तक मैं अपनी बहन भाइयों को सफाइयाँ पेश करता रहूँगा? रियाज के तुरुश लहजे पर वह सर हिला गया। दरवाजे के साथ कान लगाए महरीना ने परेशानी से कुछ सोचा, फिर वहाँ से भागने लगी। जब इसे कुर्सी से जोर से ठोकर लगी थी, घुटना पकड़े वो वहीं बैठ गई थी। सिसव कर आ गई थी, लेकिन ठटकी तब जब दरवाजे पे सबको खड़ा पाया। घुटने का दर्द भूलकर वो इनको लदरते दिल से देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही थी? सहीर खानम इसकी कलाई को सख्त हाथों में जकड़ते हुए सख्त लहजे में पूछ रहे थे। मैं यहाँ से गुजरती चटाक। इसका बहाना सुनने से पहले वो इसे जोर से थप्पड़ मार चुके थे। तुम मर्दों वाले हिस्से में क्या कर रही थी? बहुत शिकायतें मिल रही मुझे तुम्हारी। मुझे लगता है तुम्हारी टांगें काटनी पड़ेंगी। इसे दूसरे हिस्से की तरफ खींच कर ले जाते वो सर्द लहजे में बोल रहे थे कि बेटियां इन्हें अच्छी लगती नहीं थी, खासकर मेरीना सईद खानम। वो चुपचाप इनके साथ खींचती चली गई। अब इसे पता था अब मार पड़ने वाली है और कोई बचाने वाला भी नहीं था। अगर सरदार होते तो वो बचा लेते, लेकिन बदकिस्मती से अब इसे 2-3 दिन तक कमरे में ही रहना था। कैसी हैं आप? इनका सर चूमता हुआ बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था। कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बिना? वो मुस्कुराते हुए जवाबन इससे पूछ रही थी। वो इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत थी। आखिर को वो एक मिस्री थी। वो अपनी माँ की शक्ल का था, बस बाल और कद बाप पर था। बाकी वो खुद ब खुद रायना नौशेरा वाला पर था। आई मिस हाँ हिम आ लॉट माई सन। वो भी जवाबन इसका सर चूमती शिद्दत से बोली थी। वो मुस्कुराया था। बाकी लोग कहाँ हैं? घर में छाई खामोशी से खटकी थी। किसी को तुम्हारे आने की खबर नहीं थी। सब अपने अपने काम पर हैं। रात को सब लौट आएंगे। इस ऐसे अंदर ले जाती हुई बता रही थी। ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर था, जिसमें कमरे एक गोल कितार की शक्ल में थे, क्योंकि घर का कोई पोषण नहीं था। ऊपर छत था जिसमें बड़ा सा लॉन बनाया गया था। इनका घर चौड़ी गली में था जहाँ हर किस्म की दुकान थी। ये घर एक आइडियल था। ये घराना खूबसूरती की मिसाल था। यह इस घर में एक से एक बढ़कर एक हसीन था। रायना से बातें करती इसे इसके कमरे में ले गई, जो काफ़ी वसी और खूबसूरत से डेकोरेट किया गया था। कमरा देखता हुआ मुस्कुराया। इसकी माँ ने इसके जाने के बाद भी इसके कमरे की सफाई तक नहीं की थी। ये सरदार फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? फ़ोन पटकते हुए परेशान हुई थी। वॉइस मैसेज छोड़ देती हूँ। अचानक ख्याल आने पर वो मैसेज करके फ़ोन बंद कर चुकी थी। गाल इसके सूजे हुए थे। 2 दिन इससे कमरे में ही रहना था, ये इसकी सज़ा थी। देखती हूँ कैसे मारते हैं आप लोग इसे। फ़ोन उंगलियों पर लहराती हुई तंज से कहती मुस्कुराई थी। गाल दर्द किए थे, लेकिन परवाह किसे थी। ख़याम ने अच्छे से सरसों के तेल से इसके सर की मसाज किया था। वो नीचे बैठी मुस्कुरा रही थी। वो उसकी ढीली ढाली चोटी करता हुआ हाथ टिश्यू से साफ करने लगा। अब सर का दर्द कैसा है? इसने से कंधों पे हाथ रखकर इससे पूछा। वो मुस्कुराए। तुम मालिश करो और सर दर्द रह जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? वो उसकी तरफ चेहरा करती मोहब्बत से पूछ रही थी। ख़याम, बाजार से कुछ सब्जियां वगैरह ले आओ। रात को सालन भी बनाना है। वो नीचे से उठती हुई बोली। ओके, मैं ले आता हूँ, ज़रा कपड़े चेंज कर लूँ। शर्ट पर तेल के कतरे गिर गए थे। ब्राउन शर्ट पर दाग देखता वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। 1 मिनट आपी। इसे किचन की तरफ जाता देखकर वो कुछ ख्याल आने पर इसे पुकार किया। हाँ, वो पलटी थी। आप भी चले मेरे साथ, आपकी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और मैं आपको आइसक्रीम भी खिला लाऊंगा। वो कहता वो आखिर में से लालच देने लगा था। आइसक्रीम? वो हैरत से पूछ रही थी। आइसक्रीम खाए तो इसे सदियां बीत चुकी थी। हाँ, अब आपके लिए मैं ज़रूर आइसक्रीम लाया करूँगा। इसकी तरफ आता हुआ सब कुछ समझता हुआ बोला था। हीर की आंखें भरने लगी थी। ख़याम ने इसका सर अपने सीने पर रखकर चूमा। आप ही अब अच्छे दिन आएंगे। मैं पढ़ता भी हूँ और जॉब भी करता हूँ, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं। आप बस जल्दी से मुकम्मल सेहतयाब हो जाएं प्लीज़। वो इसे बाहों में लेता परेशानी से बोल रहा था। वो मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराहट ऊपरी सी थी। दोनों आइसक्रीम खाते हाथों में भारी शॉपर उठाए वो बातें करते घर वाले रास्ते पे थे, जब एक तेज रफ्तार गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। ख़याम अगर इसे खींचता नहीं तो वो गाड़ी कब की इसे कुचल कर गुजर गई होती। यू बास्टर, अंधे हो? गाड़ी में बैठकर क्या इंसान देखना बंद हो जाते हैं? वो गुस्से से इस गाड़ी वाले पे चिल्लाया था, लेकिन गाड़ी जा चुकी थी, जबकि हीर सहम सी गई थी। ख़याम को पास देखा, उसका हाथ थाम चुकी थी। इसकी आइसक्रीम भी नीचे गिर चुकी थी, जिससे इसने अभी 1-2 बाइट ही लिए थे। बच गई वो। गाड़ी वाले ने किसी को तेज़ी से मैसेज किया था। तुमसे कभी कोई काम हुआ है? मैं ही पागल था जो तुम्हें एक अहम काम सौंप चुका था। किसी ने जवाबन गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर दिया था।
باہر لان میں بیٹھی وہ دھاگے میں سرخ و سفید پھول پرو رہی تھی۔ سردار کو گئے آج 4 دن ہو چکے تھے۔ خیام کالج چلا گیا تھا۔ موسم کافی ٹھنڈا سا تھا۔ وہ نہا کر نیلے رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہنے، اوپر گلابی کریپ کا دوپٹہ اوڑھے وہ لان میں بیٹھی کافی سارے پھول توڑ کر انہیں ایک موٹے سے دھاگے میں سوئی کی مدد سے پرو رہی تھی۔ اسی وقت 3 4 گاڑیاں سردار خزان کے لان میں رکی تھی۔ اتنی گاڑیاں دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور خانم، سہیل، ریاض خانم، وہ تینوں اس کمزور لڑکی کی طرح پڑے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ تیمور نے چیک بک سائن کرتے ہوئے اس سے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی، وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی قیمت بتا بازارو عورت، ریاض نے پھنکاتے لہجے پر وہ ٹپک سی گئی تھی۔ سہمی سی وہ لڑکی 3 4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہمارے بیٹے کو چھوڑنے کی قیمت بتا اور پیسے لے کر اپنے اس بغیرت بھائی کو لے کر اور یہاں سے دفع ہو جا۔ سعید خانم سرد لہجے میں کہہ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرا بھائی بغیرت نہیں ہے۔ اسے یہ گالی بہت چبھی تھی، پتہ نہیں وہ کیسے بول گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ریاض کا تھپڑ اسے دل میں تارے دکھا گیا تھا۔ گال پہ ہاتھ رکھے وہ پشت کے بل نیچے گری تھی۔ وہ روئی، چلائی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اسے مار کر یہیں دفنا دو، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، عزت بھی رہ جائے گی۔ ریاض کے بے حس لہجے پر وہ لرز کے پیچھے کی طرف سرکی تھی۔ تو تم میرے بیٹے کا پیچھے نہیں چھوڑو گی؟ تیمور خانم آخری بات سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ بنا کچھ بولے ہوئے انہیں حیرت سے دیکھتی، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا وہ کیا بولے۔ دلاور، ریاض کے کہنے پر دلاور اس پر پسٹل تان گیا تھا۔ وہ کیسے بے حس لوگ تھے جو اس معصوم کو مارنے پر تیار تھے؟ 1 منٹ دلاور، پیچھے سے آتی سرد آواز پر سب کے حواس گم ہوئے تھے۔ وہ سب حیرت سے پیچھے کی طرف پلٹے تھے، جہاں وہ وائٹ شرٹ براؤن پینٹ پہنے سرد نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دلاور کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا، جبکہ وہ ہیر کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی شاید اب وہ کبھی اسے دیکھ نہیں سکے گی۔